لیکن شروعات کرتے ہیں جموں کشمیر سے ابھی تک کی بڑی اہم خبر اس لیے ہے کہ جموں کشمیر میں ماضی کی سرکار نے کئی بار الاٹمنٹس دی، کئی بار سرکاری اراضی یا غیر سرکاری اراضی کو عوام کے نام کئی اسکیموں کے تحت وقف کرنے کا سلسلہ تیز کیا۔ روشنی ایکٹ سے لے کر ان کسانوں ان زمینوں کی بات کریں جس پر گھر بھی بنے رہے، لیکن عموماً سردیوں میں یہ ویو تبدیل ہو جاتا ہے۔ ذرا تصویریں چلائے گا۔ روپ نگر جموں میں آج مقامی لوگوں نے زوردار احتجاج کیا۔ احتجاج کی وجہ بالکل سیدھی سادی تھی کہ ان کی جو زمینات ہے اس پر اب سرکار نے کارروائی کی، اور سرکار کارروائی اس طرح سے کر رہی ہے کہ اب کورونا وائرس اومیکرون کے بیچ میں لوگوں کو بے گھر کرنے کا مقامی لوگوں نے سرکار پر الزام عائد کیا۔ الزام عائد کرتے انہوں نے کہا کہ زمینیں ہماری، حقوق ہمارے، سرکاری افسران کن کی تانا شاہی کو لے کر ہمیں اپنے گھروں سے بے گھر کرنا چاہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جموں کے انیہ ضلعوں میں جن میں مختلف علاقے شامل ہیں، خاص کر بٹھنڈی، سدرا اور دیگر علاقوں میں بھی سردیوں کے ایام کے دوران ہم نے کئی ایک بار متواتر اور مسلسل طور پر ان کو اپنے اپنے گھروں یا آشیانوں کو گرتے پایا، اور بعد میں پتا چلا جب فرد کاٹتے رہے زمین جو تھی اس کا حق ضرور آپ کے پاس ہے، لیکن زمین شاید آپ کے نام مالکی طور پر تصور نہیں کی جاتی ہے۔ تصویریں روپ نگر جموں کی ہے جہاں پر آج وہ لوگ جنہیں اپنے گھروں کے آشیانے توڑ کر انہیں بے گھر کرنا چاہتے ہیں، مقامی لوگوں نے ایل جی انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ کورونا وائرس کے اس ماحول کے بیچ میں زندگی پہلے ہی بہت مشکل برے ماحول سے گزر رہی ہے انہیں اور راحت دی جائے۔ محبوبہ کا ٹویٹ آیا چاہتا ہے، لیکن اس سے قبل مقامی لوگوں کے تاثرات۔ 2014 میں ڈرا نکلا، پلاٹ ہمیں مل گئے، الاٹ ہو گئے، ہم نے پیسے دے دیے، رجسٹری 2015 میں ہمارے نام پہ رجسٹری ہو گئی، اور 2015 میں ہمیں پوزیشن لیٹریں بھی ایشو ہو گئی۔ سر جب ہم زمین پہ وہاں پہ لینڈ پہ جاتے ہیں تو جے ڈی اے والا بولتے ہیں کہ وہاں کے کسی پارٹی نے اسٹے لیا ہوا ہے۔ سیف علی نام کی کوئی ایک آدمی ہے، اس نے جے ڈی اے کی روپ نگر میں سیکٹر نمبر 6 نیو میں 100 کنال جے ڈی اے لینڈ پہ اسٹے لیا ہوا ہے۔ پھر بعد میں وہ 55 کنال پہ بولتے ہیں، ہمیں بولتے ہیں کہ 1-2 مہینے میں آپ کو فزیکل پوزیشنس دے دی جائیں گی، پر صاحب ہم ایک بار جاتے ہیں، 2 بار آ جاؤ کل آؤ کرتے کرتے ہمیں 6 سال نکل گئے ہیں سر۔ 6 سال بعد ہم بھی پارٹی بنے کورٹ میں سر، 16 دسمبر 2021 کو وہ اسٹے ڈسمس کر دیا ہے ہائی کورٹ کی ڈبل بینچ میں۔ سو اس کے بعد ہم جے ڈی اے میں کیے ہیں، جو جے ڈی اے وی سی صاحب ہیں مگوترا جی، پنکج مگوترا جی، ان سے ہم نے بات کی، انہوں نے بولا کہ ہم جلدی ڈرائیو چلائیں گے، جگہ خالی کروا کے کو فزیکل پوزیشن دے دیں گے۔ ہماری بات راہل لنگر جی سے ہوئی، لنگر جی نے بھی اچھا کیا، سر ڈی سی صاحب ڈیپ کام صاحب سے، راگھو لنگر جی سے، سر ڈی سی جموں ایڈیشنل ڈی سی صاحب نے، سر ایل جی صاحب نے بھی اچھی سپورٹ کی۔ سر وہ کل جو ڈرائیو چلا رہے تھے وہاں پہ خالی کروانے کے لیے، انہوں نے صبح ڈرائیو چلائی ہے تو ڈرائیو 12 بجے تک تو ڈرائیو چلتی رہی ہے۔ انکروچر کے جو 10 اسٹرکچر تھے وہ توڑ رہے تھے سر، کو 2 بجے کے قریب وہ اسٹرکچر الگ اچانک سے کام بند کر دیا گیا۔ ڈرائیو 70% ڈرائیو چل چکی تھی، اسٹرکچر توڑ دیے گئے تھے انہوں نے، پتہ نہیں کس کا پریشر آیا، کون سا پریشر ان کو پولیٹیکل پریشر آیا کہ انہوں نے اسٹرکچر توڑنا بند کر دیے۔ سر ہم ایل جی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی وہ زمین خالی کروائی جائے، اسٹرکچر ڈیمولش کروائی جائے، اور ہمیں جلدی سے جلدی فزیکل پوزیشن دی جائے۔ ہم بول ہی نہیں سکتے، ہمارے منہ میں زبان ہی نہیں رہی، کیسے بولیں؟ ہمارے دربدار ہو گئے، بچے دربدار، ہم دربدار، ہمارا مال دربدار۔ سن 1947 سے پہلے بھی ادھر رہتے تھے ہم، ہمارے دادے پردادے بھی ادھر گزر کے ہیں۔ آج ان کو جے ڈی والوں کو جیڈیا تو 78 میں بنی ہے، ہم اتنے بھی حقدار نہیں تھے ان کے لیے۔ ہمیں بولا بھائی ہمارے مکان ہی چھوڑ دو، باقی زمین آپ ہی سانبھ لو۔ انہوں نے جناب بڑی بے انصافی کی ہمارے ساتھ، بڑی بے انصافی کی ہمارے ساتھ، کوئی انصاف نہیں کیا ہمیں، بہت کیا۔ ابھی ہمارے 2 سٹے چل رہے ہیں کورٹ میں، 2 سٹے ابھی چل رہے ہیں، ہمیں ان کو دکھایا، کوئی کسی نے ہمارا سٹے نہیں مانا، انہوں نے بالکل توڑ دیا۔ ہمارے 2 بندے لے گئے، پولیس تھانے گئے تھے کل، وہی سٹے دسنے کے لیے بھائی ہمارا ادھر سٹے چل رہا ہے کورٹ میں، ادھر ہمارے نہیں آنا۔ وہ دونوں بندے ہمارے انہوں نے گرفتار کر لیے ادھر ہی پولیس والوں نے، وہ اس وقت انہوں نے چھوڑا جس وقت توڑ پھوڑ دیا انہوں نے۔ مکانات کی انہدامی کارروائی یعنی وہ لینڈ جنہیں سرکار کے کھاتے میں انکروچمنٹ کہا جاتا ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ فوری طور پر اراضی خالی کی جائے، اس کے بعد جو ڈی اے ڈی کے آرڈرز ہیں اور جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی جے ڈی اے کے آرڈر جو ہیں انہیں عملایا جائے، اور ڈپٹی کمشنر ڈویژنل کمشنر سے فوری طور پر مداخلت کی اپیل کی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہیں عرف عام میں ہم گجر، بکروال، پہاڑی
اور बाकी नामों से जानते हैं। ये कबायली अमूरात के मामलात हैं और बहुत सारा पैसा मरकज की तरफ से कबायली अमूरात के लिए आते हैं, लेकिन जो कबायली कमजोर नादान अब कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उनके मकानात गिरने का सिलसिला जम्मू में कई इलाकों से शुरू हुआ। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का ट्वीट इसी खबर पे आया चाहता है। महबूबा मुफ्ती अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखती है, कैसे हो सकता है जब आप इनको अपने घरों से, अपने आशियानों से बेघर करेंगे। जम्मू कश्मीर की प्रशासन सिलेक्टिव डेमोलिशन ड्राइव करती है जम्मू में और रेंडर करते हैं उन लोगों को जो कबायली अमूरात से ताल्लुक रखते हैं, जो हमारे कबायली भाई हैं, उन्हें घर नहीं, अब उन्हें घर से बाहर भेजा जा रहा है, उन्हें होमलेस किया जाता है। महबूबा मुफ्ती साबिक वजीर आला पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के रूपनगर और अन्य इलाकों में जहां इन लोगों को घरों से निकाला जा रहा है और खदेड़ा जा रहा है, 1947 से हालांकि ये लोग कई एक इलाकों में रह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम आयद किया ये तो अरबाब इक्तदार जो बड़ी बड़ी और ऊंची कुर्सियों पर कई कई जगहों पर बैठे हैं, उनके इशारों से काम होता, ये काम निचली सतह का नहीं है और इन लोगों को आज के दौर में आप बेघर करेंगे। ये माइनॉरिटीज हैं और ये बहुत कम तादाद में जम्मू में रिहाइश पजीर हैं, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर जो है सरकार को अपनी पुलिस का इस्तेमाल कम करके इन लोगों की मदद करनी चाहिए। एक तरफ इनके हकूक हैं, दूसरी तरफ माइनॉरिटीज में है, तीसरी तरफ ओमिक्रॉन है, चौथी तरफ आपका कहीं ना कहीं कोरोना वायरस है। महबूबा मुफ्ती ने गुजर पहाड़ियों और कबायली के साथ जबरदस्त हमदर्दी का इजहार करते हुए प्रशासन पर इल्जाम आयद किया कि कोरोना वायरस और कवानीन का गलत इस्तेमाल करके अरबाब इक्तदार जो नई दिल्ली से लेकर यहां पर बैठे हैं, अपने ताकत का बेतहाशा गलत इस्तेमाल करके इन कमजोर और नादार लोगों को अपने घरों से बेघर करना चाहती है। पुलिस पर भी सख्त इल्जामात महबूबा मुफ्ती ने इस कार्रवाई के बाद लगाए हैं, लेकिन आवाम से जाते जाते कहा खड़े हो जाएं, ये वक्त आपको अपनी आवाज बुलंद करने का है, एहतजाज करने का है। कहीं ऐसा ना हो कि आप खामोश होते रहें और आपके घर वालों को, अपने अफराद खाना को तकलीफ में इस बीमारी के वक्त में डाला जा रहा हो। नाज़रीन, कोविड-19 कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के बीचों बीच में उलमा की तरफ से लगातार अपने पैगामात का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर की बड़ी अहम मजहबी शख्सियत आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने अपने टेली पैगाम में बाकायदा तौर पर कोविड-19 में मास्क पहनने के सफर को बड़ी शिद्दत के साथ इस्तेमाल करने का मन बनाया हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि अवाम तक यह मैसेज पहुंच जाए ताकि मास्क पहनते रहें, समाजी दूरियों को बरकरार रखा जाए, लेकिन जिम्मेदारी इंसान और इंसानियत की है, उसको भी मुश्किल हालात में भी अदा करना होगा। आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल रही इस बीमारी पर अपने पैगाम में कहा, जो SOPs है इस पर सख्ती से अमल पैरा रहना है, मास्क जरूरी पहनना है, हाथ जरूरी धोना है, डिस्टेंस का ख्याल रखना है। ये एक सेहतमंद तंदुरुस्त माशरे के लिए इन हालातों में जरूरी है। जिस तरह कोविड के सिलसिले में वक्तन फवक्तन मीडिया के जरिए से, अखबारों के जरिए से हिदायत बताए जाते हैं, उस पर अमल पैरा होना शरीत और वाजिब बनता है और दागोबी होना चाहिए। अल्लाह ताला से सर्ब सुजूद रहना चाहिए। वही सबसे बड़ा हकीम है, वही सबसे बड़ा डॉक्टर है, उससे भी दस्तबदा रहना चाहिए। अपने लिए भी, आलमी इंसानियत के लिए भी दागो होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह खुदा हमें इस वबा से पूरे आलमी इंसानियत के साथ महफूज रखेगा और इसे नजात देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस कोविड-19 के बीच में SOPs का खास ख्याल रखने की अपील कर रहे थे और उन्होंने अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए
तमाम मजहबों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से अपील की है कि कम अज़ कम नमाजों का बाकायदा तौर पर इनेकाद करें, दुआओं का खुसूसी एहतमाम करें और इस बीमारी से नजात हासिल करनी है तो न सिर्फ आपको मुस्तहकम रहना होगा, बेहतर रहना होगा, बल्कि अपनी इबादतों का सिलसिला मजीद तेज करना होगा। जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क भर के हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट आप जम्मू स्टूडियो से अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम के साथ बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, कौमी शहरा का अब हाल जानने की कोशिश करते हैं। मुसलसल बारिशों और बर्फबारी की वजह से बीते हफ्ते से लेकर रवां हफ्ते के दौरान ट्रैफिक में बहुत ज्यादा खलल पड़ा। इतलात के मुताबिक आज किसी भी तरफ से न जम्मू श्रीनगर न श्रीनगर जम्मू से ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि बीते रोज में जब श्रीनगर से जम्मू की ओर ट्रैफिक चलने की इजाजत दी गई तो उसके फौरन बाद अवाम ने भी इसरार किया कि 6 घंटे का सफर कैसे 16 घंटे में दाखिल हुआ। तस्वीरें आज की है, आप देख सकते हैं कि पंथियाल और इसके आगे के मुख्तलिफ जगहों पर अचानक चट्टानें खिसकने की वजह से सड़क हादसात में कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है। अचानक मिट्टी गिराने और उसके बाद चूंकि पहाड़ों पे बर्फ पड़ी है, थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी होगी। इन पहाड़ियों के दूर दराज इलाकों में बर्फ पड़ी है, जिससे जो मिट्टी है उसकी नमी जो है उसका उस पर असर पड़ गया। मिट्टी नरम पड़ने की वजह से जो इसमें चट्टानें होती हैं वो निकल आती हैं। तस्वीरें आपके पहुंच रही हैं। ये चट्टानें जब नीचे आती हैं तो पैदल तो क्या, रोड पे चलने वाले, चाहे वो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में हो, जाती गाड़ी में चल रहे हो, अगर ये पत्थर उससे टकराता है तो सड़क हादसे का बहुत बड़ा वजह आ सकता है। यही वजह है कि बीती शाम में दोबारा एडवाइजरी को मॉडिफाई किया गया। एक वक्त में ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम ने जम्मू से श्रीनगर के लिए कहा था, बाद में उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया और आज न श्रीनगर जम्मू और न जम्मू श्रीनगर से ट्रैफिक या इस काफिले को चलने की इजाजत दी गई, क्योंकि बीकॉन, ग्रेफ और मुत्तलका डिपार्टमेंट ने एक कोऑर्डिनेशन के साथ डिप्टी कमिश्नर रामबन की हिदायत पर एक कमेटी तश्कील दी, जिसके बाद यह फैसला पाया गया कि फौरी तौर पर जो है फिलहाल आज की तारीख में हमें इस रास्ते को और बेहतर करना होगा। अगर बेहतर रास्ता नहीं होगा तो सड़क हादसा जो है उसको रोकना नामुमकिन होगा। और इस सारी सूरत हाल के बीचों बीच में हमारे साथी जो है आरिफ वहीद आज खुद सूरत हाल का जायजा लेने के बाद सीधे उनके साथ जुड़ते हैं। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। ताजा तरीन तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। ट्रैफिक चलने न चलने की क्या वजह रही और आइंदा क्या लाहे अमल और हिकमत अमली ट्रैफिक और डिप्टी कमिश्नर ने आगे रखनी होगी। जी बिल्कुल सही तजम्मुल। मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर पिछले कई रोज से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा है, उसमें इंतजामिया ने या ट्रैफिक अथॉरिटी ने यानी ट्रैफिक को रेगुलेट करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन रामबन बनिहाल के स्ट्रेच में जो पसियां गिराती है वो कहीं ना कहीं पे जो ट्रैफिक एडवाइजरी है या जो ट्रैफिक अपडेट है उसको कहीं ना कहीं पे तब्दील करता हुआ दिख रहा है। और जहां पर आज सुबह जो है जब गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही थी ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, वहीं पे यानी रामबन के मिहाड़ इलाके में, कैप्टेरिया मोड़ के इलाके में जहां पे 4 लाइन के स्ट्रेच में काम चल रहा है, वहां पे स्लाइड जो है वो बदस्तूर उतरती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं पे खुश्क मौसम में भी जो है वो इलाका कहीं ना कहीं पे ट्रैफिक रेगुलेशन में बाधा डालता है। और आज की बात करें तो आज जो ही ट्रैफिक जो है रवा दवा देखने को मिला, तो उसके फौरन बाद जो है कई घंटे के बाद मिहाड़ के इलाके में जो है, कैप्टेरिया मोड़ के इलाके में भारी पसिया गिराने के सबब जो है कौमी शाहरा पे स्पेस की तंगी की वजह से जो है फिलहाल आमदरफ्त को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इंतजामिया का मानना है कि जहां जहां पर भी लैंडस्लाइड्स है, जहां पर शूटिंग स्टोन्स है, वहां पर वन वे ट्रैफिक को रेगुलेट करने की जो बात की जा रही थी या कई जगहों पे रेगुलेट किया भी गया, लेकिन मिट्टी के तोदे गिराने की वजह से जो है वो शाहरा जो है फिर से बंद है। और यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि फिलहाल ट्रैफिक को यानी सस्टेंड रखा जाए और ताकि इन पसियों पे काम जो है शदोमत से जारी किया जाए और पैसेंजरों को आने वाले समय में किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। एक आखिरी सवाल होगा आरिफ आपसे, बड़ा अहम सवाल होगा कि क्या आने वाले दिनों में अब जम्मू श्रीनगर या श्रीनगर जम्मू के लिए ट्रैफिक को दोबारा बहाल करने के लिए कोई लाहे अमल तरतीब दिया गया? और इस तरह के शूटिंग स्टोन्स को भी रोकना इतना आसान नहीं होगा, और कुछ वक्त हमने देखा कि ये 2-3 महीने बड़े खतरनाक अमल से गुजरते हैं, तो क्या कल के लिए अभी तक कोई इस तरह का पैगाम आया ट्रैफिक कंट्रोल रूम की तरफ से? बिल्कुल सही तजम्मुल। जिस तरह से एसएसपी ट्रैफिक के साथ हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ट्रैफिक जो है सुस्त रफ्तारी से चल रहा था, लेकिन मिहाड़ के इलाके में जो है कैप्टेरिया मोड़ पे जो है ट्रैफिक बंद करे। लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक एडवाइजरी, जैसे मैंने पहले कहा कि जब
ट्रैफिक प्लान को सेट किया जाता है यानी नेक्स्ट डे के लिए, तो उसमें रामबन बानिहाल स्ट्रेच जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है उसको तब्दील करता है वक्त के साथ साथ। जहाँ पे बर्फबारी हुई या बारिशें हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो ऊपरी जो सरफेस है वो खिसकती है, जिससे कि पत्थर खिसकने का सिलसिला जो है, तो उसमें कहीं ना कहीं उस एडवाइजरी में उस प्लान में जो है कहीं ना कहीं पे दिक्कतें जरूर आती है। लेकिन उम्मीद ये है कि जो स्लाइड प्रून एरियाज है वहां पर काम जो है वो शदोमत से जारी है। चाहे डिप्टी कमिश्नर रामबन की बात को मॉनिटर करते हैं, एसएसपी रामबन की बात करें या जो ट्रैफिक एसएसपी है वो भी बिल्कुल यानी हर समय जो है रोड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामबन की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम तक पहुंचाने का। आरिफ वहीद का साफ कहना है कि जो डिप्टी कमिश्नर रामबन हैं मसरतुल इस्लाम, और उनकी जो मीटिंग चली ट्रैफिक कंट्रोल रूम के अफसरान के साथ मिलकर, और ये पाया गया कि जो शूटिंग स्टोन है लगातार और मिट्टी गिर आने की वजह से जो ट्रैफिक में खलल पड़ा है और इसके हादसात रोनमा न होने का माहौल ऐसा बनाया जाएगा, क्योंकि लगातार सड़क हादसात की वजह से कई बार जो है परेशानियों से ट्रैफिक डिपार्टमेंट को और प्रशासन को भी गुजरना पड़ा। लेकिन जो ताज़ा एडवाइजरी है, चूंकि आज किसी भी तरसमत से ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं थी और बाद दोपहर और सपहर के बाद शाम होते होते जो है वो उसमें सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरफ से ट्रैफिक को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। और इन तस्वीरों में एक आपके लिए बड़ी सबक आमोज कहानी यह है कि जब आप सफर के लिए रवाना होंगे, चाहे आप श्रीनगर से जम्मू आए या जम्मू से आपने श्रीनगर जाना हो, तो खुदा के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर से पहले राब्ता कायम करें। बहुत वक्त में रात की एडवाइजरी का आप व्हाट्सएप या फेसबुक या सोशल मीडिया पर या गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के जो टिकर वगैरह चलते हैं उसकी जानकारी हासिल करने के बाद दोबारा राब्ता कायम करें। वक्त जाया नहीं होगा, बल्कि जब आप घर से निकले दोबारा राब्ता कायम करें, क्योंकि आरिफ वहीद ने बड़ी अहम बात की कि ये जो रामबन कैफेटेरिया मोड है और बाकी इलाके हैं, ये ट्रैफिक एडवाइजरी को तब्दील करने में कभी कभी बहुत ज्यादा मौसर अंदाज में सामने आता है। और अभी ट्रैफिक चल रहा हो, अभी दोबारा चट्टाने खिसकें तो उसमें ट्रैफिक एडवाइजरी को तब्दील करना पड़ता है। अब नाज़रीन एक और अहम मौजू का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो बीते शाम में अब एक बार फिर केसों का आंकड़ा जो है हजारों से निकलकर अब तकरीबन जो है वो लाखों में दाखिल होने लगा। ये कोरोना वायरस के केसेस के साथ साथ ओमिक्रॉन के कितने केसेस इस वक्त मुल्क में हैं? 4000 भी पार हो चुका है। हिंसा या न्यूमेरिकली आपको 4000 ज्यादा बड़ा फिगर ना लगे, लेकिन यह फिगर बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मुल्क में इस वक्त क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? 1,68,000 के करीब जो है इस वक्त दोबारा केसों ने जन्म लिया, जिनको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। और अब अनंतनाग से भी हमारे साथी फिदा हुसैन से जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसों में लगातार उछाल के बाद सैंपल जो थे जब वो वापस आए लेबोरेटरी से तो पाया गया वाकई ओमिक्रॉन कश्मीर में दाखिल हो चुका है। सीधे चलते हैं अपने साथी फिदा हुसैन के साथ। फिदा हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। ताजा तरीन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स में अब ऑक्सीजन को बाज़ाब्ता तौर पर आवाम तक और बीमारों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और जीएमसी में जो है फैकल्टी की छुट्टियां खत्म कर दी गई, डॉक्टरों की छुट्टियां खत्म कर दी गई, तुलबा का ऑनलाइन क्लास मोड जो है दोबारा चालू कर दिया गया। ये इंडिया किस ओर है? और अनंतनाग में जो ओमिक्रॉन के केसों की जो तादाद आने लगी, अब बीमारों का क्या हाल है और डॉक्टर क्या कुछ कहते हैं? देखिए तजम्मुल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम तीसरी लहर की बात करेंगे, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर के लिए जहां जिला इंतजामिया बार बार लोगों को कहती हुई नजर आ रही थी कि तीसरी लहर किसी भी वक्त आ सकती है, आप इसको ऐसे मत ले लीजिए कि अब ये कोविड खत्म हो चुका है। लेकिन कोविड के बीच ओमिक्रॉन की बात की जाए, यहाँ पे जो सैंपल्स लिए गए थे, जो मटन पीएचसी से लिए गए थे, 3 केसेस वो मस्बत पाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जीएमसी के प्रिंसिपल का कहना है कि आज की डेट में वो तीनों मरीज जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जिला अनंतनाग के लोगों से कहा कि अभी आपको और कुछ करने की जरूरत है। जिस तरह से आप बाहर जब जाएंगे तो आपको बिना मास्क के बाहर ना आए, अगर आप घर में भी रहेंगे,
घर में भी अगर आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं छुट्टियों पे भी आ जाता हूँ, क्योंकि जो विंटर वेकेशन जो है, जो कुछ डॉक्टर्स गए थे उनकी जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल की गई है। हालांकि श्रीनगर से इसकी शुरुआत हुई और अब ये अनंतनाग भी पहुंचा है, जहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक ने गुलिस्तान न्यूज को बताया कि जो ओमिक्रॉन है, हालांकि ओमिक्रॉन की लहर भी है, कोविड से भी लड़ना है, और इन दोनों चीजों से लड़ने के लिए कहीं न कहीं पे हमें इकट्ठा नहीं होना है। अगर हम कहीं पे जमा हो जाते थे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग भी, तो अब हमें लेकिन फिदा हुसैन, जिस वक्त आप ओमिक्रॉन की बात करते हैं, कोरोना वायरस की बात करते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या ये अलग अलग सिम्टम्स होते हैं? जिन फैकल्टी से आपकी डॉक्टरों से बातचीत हुई वही सिम्टम्स है, या लाजमी नहीं है कि सिम्टम आ जाए और ओमिक्रॉन आपके अंदर दाखिल हुआ हो? देखिए तजम्मुल, जहाँ पे 3 मरीजों पे अगर हम बात करेंगे, इन तीनों मरीजों के सिम्टम्स के बारे में बात की जब डॉक्टर तारिक ने, तो उन्होंने कहा कि ऐसे सिम्टम्स नहीं पाए गए थे उनके अंदर, लेकिन ओमिक्रॉन जो है वो साफ तौर पे उन तीनों के अंदर पाया गया है। आज की डेट में वो सेहतयाब हो चुके हैं। अब खांसी या जुकाम, अगर कभी बुखार आ जाता है तो उनको काफी ज्यादा जो है उस वक्त डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करने की जरूरत है और उसको टेस्ट करने की भी जरूरत है। हम देखते हैं कि जब कहीं पे कोई बीमार होता है, जब हम उनको देखने के लिए जाते हैं तो हम इन चीजों से परहेज करते हैं, इन चीजों से हम नहीं घबराने की बात करते हैं कि हम बिना मास्क के वहां जाएंगे। हालांकि मास्क के बगैर हमें नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन इस सारी जानकारी के लिए। फिदा हुसैन हमारे साथी इस सारी जानकारी को आप तक पहुंचा रहे थे। थोड़ा सा आपको मैं और बताना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन के साथ साथ अब जब आप कोरोना वायरस कोविड-19 के केसों को पाते हैं, मुल्क में बीती शाम में जो फिगर है ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। 1,68,000 के करीब केस जो है मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों या जेर इंतजाम इलाकों में देखे गए। और ओमिक्रॉन के कितने केस इस वक्त मुल्क में है? 4,000 का हिंसा पार हो चुका है, जिसमें कश्मीर वादी में भी 4 केसों को कंफर्म मेडिकल रिपोर्ट ने किया हुआ है। लिहाजा एहतियात बरतें। और इसके अलावा जो ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस की वजह से मामूलात जिंदगी जो है जम्मू कश्मीर में ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, और जम्मू में भी शाम 8:30 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट्स और बाकी खान पान की जो चीजें वो बंद कर दी जाती है। उसके बाद अगर आपने खाने पीने का इंतजाम करना होगा तो आपको होटल रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद शटर नीचे उतारने का पुलिस ने हुक्म बजा दिया है। उसके बाद कश्मीर में भी इसी तरह की सूरत हाल है, और जो डॉक्टर्स हैं उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई। और उसके बाद कई डॉक्टर्स तो अबू धाबी या दुबई चले गए थे, कुछ लोग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, या कुछ लोग जो है नई दिल्ली के लिए रवाना हुए थे अपने फैमिली को वहां ज्वाइन करने के लिए। सर्दियां बहुत हैं, लेकिन उन्हें भी वापस आने का बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया गया। इसी तरह से फैकल्टी मेंबर्स जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में है, उन्हें अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला तुलबा के साथ, छात्रों के साथ शुरू कर दिया गया है। इसी तरह से कोचिंग सेंटर्स और टूरिज्म और बाकी डिपार्टमेंट में अब ज्यादा भीड़ जो है उसको जमा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप जरूर सुनेंगे हमारी बात को। 3 चीजों को दोबारा आपको अपनाना होगा। समाजी दूरियों को बरकरार रखिएगा और दिल की दूरियों को आपने बरकरार रखना ही रखना है। सिर्फ आपको सोशल डिस्टेंसेस के साथ चलनी होगी, जिससे हम उर्फ आम में समाजी दूरियां कहते हैं। मास्क का इस्तेमाल कसरत से करें, और एक वक्त में हम स्टूडियोज में भी मास्क का इस्तेमाल करते थे। हो सकता है कि एडवाइजरी दोबारा आ जाएगी। उसके बाद जब आप घर आए और घर से दफातर की तरफ जाएंगे या काम के सिलसिले में बाहर आएंगे, जब आएंगे तो जरूर अपने दोनों हाथ जो है सोप या सैनिटाइज करके ही आप फैमिली को ज्वाइन करेंगे। क्या लेकर आप बाहर जा रहे हैं और क्या लेकर आप बाहर आ रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करें कि फौरी तौर पर अपना ड्रेस तब्दील करें और उसके बाद फैमिली मेंबरान को दोबारा ज्वाइन करें। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में फ्रूट ग्रोवर्स ने अपनी मांगों को लेकर कई बार एहतजाज किया, धरना भी दिए। हालिया दिनों में आपको याद होगा एडवाइजर फारूक अहमद खान ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि किसी भी मुल्क का जो एप्पल है वो कश्मीर कैसे पहुंच सकता है। उन्होंने कहा था कि कश्मीर का एप्पल तो इस साल यूटी सरकार में हमने न सिर्फ अमेरिका, यूरोप बल्कि कई एक ममालिक तक पहुंचाया, और मशरिकी वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक तक का भी सफर हमने तय किया कश्मीरी सेब के मार्केटिंग को लेकर। लेकिन आज कश्मीर घाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बशीर अहमद बशीर ने पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि फ्रूट मंडी पारिमपोरा स्टेशन के सरपरस्त आला भी हैं, उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कॉपी फ्रूट मुख्तलिफ ममालिक से कश्मीर, जम्मू पहुंचाकर
کشمیر کے فروٹ کو دھچکا دینے کی ایک سازش رچائی جا رہی ہے۔ فروٹ ایسوسی ایشن کے صدر بشیر احمد نے کہا، آف انڈیا اور ہمارے آنریبل پرائم منسٹر کا جو موٹیو ہے کہ ہمیں ہندوستان کا ہی پہننا چاہیے، ہندوستان ہی کھانا چاہیے، اس کے برعکس اس وقت اس سال اور پچھلے سال بھی کسی حد تک ہوا تھا کہ ایران سے جو ہمارے فروٹ ہندوستان بھر کے منڈی میں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری بے حد متاثر ہو رہی ہے۔ اس وقت دیوالی تک ہمارے ریٹس اچھے رہے چونکہ ہارویسٹنگ پیریڈ ایران اور کشمیر کا ایک جیسا ہے۔ ہندوستان سے کئی لوگ گئے ایران میں، چونکہ ایران میں سینکشنیں لگی ہیں، وہاں تجارت نہیں ہو پاتی ہے باقی ممالک کے ساتھ، وہاں کا سیب بہت سستا ہے وہاں پر۔ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں قریباً 15 سے 20 روپے کلو وہاں ہندوستانی کرنسی میں بکتا ہے وہاں پر، اور ہندوستان بھر کے کئی لوگ گئے، انہوں نے وہاں سے مال خریدا اور وہاں سے اسٹوروں میں رکھا، وہاں کے گوداموں میں رکھا، اور جب اس نے آنا شروع کیا یہاں ہندوستان کی منڈیوں میں، سب سے زیادہ وایا بمبئی سے پورٹ پر آتا ہے، کوچین کے پورٹ پر آتا ہے، چنئی کے پورٹ پر بھی آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن کی ڈیمانڈ بہت حد تک ختم ہو گئی ہندوستان بھر کے منڈیوں میں۔ اگر گورنمنٹ نے یہاں کا پروڈکشن بڑھانے کے لیے اس کے لیے کوششیں کی، مگر اس کی مارکیٹنگ کے لیے کیوں اس میں روڈے اٹکاتے ہیں؟ ہمیں اگر اپنا پروڈکٹ ہمارے پاس ایپل کے ایک وافر مقدار میں موجود ہے، یہاں اس وقت پروڈکشن ہے ہمارے پاس، تو باہر سے منگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں یہ جو ہمارے باغات کے مالکان ہیں، جو ہمارے آرچرز ہیں، جو اس کے ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ نقصان سے دوچار ہوں گے اور ہمیں یہ باغات پھر کاٹنے پڑیں گے۔ ایرانی سیبوں کی پیداوار اچھی ہے، لیکن ان ایرانی اور آس پاس کے ممالک کے ساتھ زیادہ بہتر رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایران کا سیب اور باقی میوہ جات جو ہے وہ اب اس طرف آنے لگے ہیں، جو کہ کافی سستا ہے، لیکن اسے لوگ جو ہے کشمیری سیب سمجھ کر خریدتے ہیں، جسے مارکیٹنگ میں بڑا نقصان ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ بشیر احمد بشیر فروٹ منڈی ایسوسی ایشن پارمپور کے سرپرست کی پرہجوم پریس کانفرنس۔ ناظرین، جاتے جاتے یہ اہم خبر کہ سابق وزیر اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر قائد قاضی محمد افضل کی اہلیہ آج گاندربل میں انتقال کر گئی۔ کچھ دن پہلے انہیں بیماری ہونے کے بعد انہیں سکمز میں داخل کیا گیا۔ آج انہوں نے آخری سانسیں لی۔ پی ٹی پی صدر محبوبہ مفتی، پی ٹی پی کے سینئر لیڈر محمد سرتاج مدنی، نعیم اختر، عبد الرحمن ویری، غلام نبی لونہانجورہ سمیت کئی لیڈران نے قاضی محمد افضل کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ دیش دنیا کی خبروں کو جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیں گلستان نیوز نیٹ ورک۔ جموں اسٹوڈیو سے تجمل رخصت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔